આઝાદ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડના બ્રોકર કોન્ફરન્સમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. આપણે આઝાદ એન્જિનિયરિંગનું આઈપીઓ લાવીએ છીએ. આઝાદ એન્જિનિયરિંગ બેઝિકલી ગ્લોબલ ઓઈએમ સપ્લાયર છે, જે કંપનીઓ કોમ્પ્લેક્સ હાઈલી એન્જિનિયર્ડ ઇક્વિપમેન્ટ, પ્રિસિઝન ફોર્જિંગ જેવી વસ્તુઓ બનાવે છે. ખાસ કરીને કંપની એનર્જી સેક્ટરમાં, એરોસ્પેસમાં અને ડિફેન્સ સેક્ટરમાં એન્જિનિયરિંગ સપ્લાય ઓઈએમને સપ્લાય કરે છે. આઈપીઓની થોડી માહિતી આપો તો આઈપીઓ ડિસેમ્બર 20 એટલે કે બુધવારે ઓપન થશે અને ડિસેમ્બર 22 ફ્રાઈડેના ઇશ્યુ ક્લોઝ થાય છે. 21 ડિસેમ્બરે એન્કર બુક ઓપન થઈને એલોટમેન્ટ થશે. ઇશ્યુનું પ્રાઇસ બેન્ડ છે 499 થી લઈને 524 રૂપિયા, 524. 28 શેરનો લોટ છે. ઇશ્યુ સાઇઝ છે 740 કરોડ, 240 કરોડનું ફ્રેશ ઓફર અને 500 કરોડનું ઓફર ફોર સેલ. આપણી સાથે કંપની મેનેજમેન્ટમાંથી શ્રી રાકેશ ચોપદાજી, ચેરમેન અને સીઈઓ કંપનીના છે, અને શ્રી વિષ્ણુ માનપાલીજી કંપનીનો હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર છે. હું હવે કંપનીનું ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્લે કરીશ અને પછી રાકેશજી કંપની બાબતમાં થોડી માહિતી આપશે. થેન્ક યુ. I'll just address for a few minutes, and then we can start the case. Sure. Good morning, everyone. Thank you so much for your time to attend this event here. Myself, Rakesh Chopra, I'm the Chairman and CEO at Azad. Established this company in the year 2008 with just one machine and as a self-operator. So basically, it's a scratch story. Today, we are 1,000 plus, a very strong team of people catering to the very niche markets in aviation, energy, oil and gas, and defense. When I say it's very niche industry, even the products are very niche. To understand the industry, we have made a video. That video is going to really showcase what this industry is, because we claim or we say or we try to make people understand that this business is a bit differentiated. This difference is a bit different than the normal engineering, or when we try to understand what is the differentiation in a normal engineering and a high precision engineering. So to make everyone understand, we have made this video where you will have a fair idea what kind of industries and what our product plays an important role. Thank you. Vishnu. Lights off. Ladies and gentlemen, I hope आपको वीडियो कैसा लगा? Like it was like business समझा पाया, इंडस्ट्री समझा पाया ये वीडियो. So मेरा मेन मोटो ये था कि ये इंडस्ट्री समझ में आना है. That's the whole purpose to show the industry. और इस इंडस्ट्री रिलेटेड जो हम बोलते हैं लाइफ क्रिटिकल प्रोडक्ट्स, हम बोलते हैं मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स, तो इसमें आपको 2 शॉट दिखे होंगे जो मेरे को बेहद अच्छे नहीं दिखते, फिर भी मेरे को लगाना पड़ा इसमें. एक सिटी एकदम से डार्कनेस में चली गई, एक आपने फायर देखा एयरक्राफ्ट में. सॉरी टू शो दैट वीडियो, सॉरी टू शो दैट शॉट्स, बट दिखाना इंपॉर्टेंट था कि व्हाट डू वी मीन बाय लाइफ क्रिटिकल, what do we mean by precision. So that was the whole idea कि वीडियो दिखाने का मतलब एक ही था कि to first understand the business. तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है किसी के? So जो हमारा प्रोडक्ट है और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, एक ही नहीं है, हमारे काफी प्रोडक्ट्स हैं. एंड जब हम बात करते हैं कि 3D एयरफॉयल, 3D, what is 3D, what is 2D? 3D 3 dimension, 2D 2 dimension. Anything which is length into width into thickness into radius 2D में बनता है, और 3D है जो आप मेजर नहीं कर सकते. 2 एयरफॉइल्स आप जो देख रहे हैं, विष्णु के फोटो एयरफॉइल्स है,
ये जो आपको दिख रहा है ये सारे एयरफॉइल्स है एंड आपने अभी वीडियो में देखा कि इनका फंक्शन क्या है एंड दिस प्लेस सच एन इंपॉर्टेंट रोल कि आज जो ये फोटो में आपको दिख रहा है इंजन पूरा द कंप्लीट इंजन इसको टरबाइन बोलते हैं। टरबाइन का जो इस्तेमाल है टरबाइन जो एक इंजन है इसको लैंड एविएशन और स्पेस में इस्तेमाल किया जाता है। मेजर जो लैंड में इस्तेमाल होता है पावर जनरेशन, मैकेनिकल ड्राइव, ऑयल एंड गैस एंड यूटिलिटीज, इन 4 सेक्टर्स में मेजरली यूज होता है। स्पेस एविएशन में जाते हैं, एविएशन में हमको मेजरली देखते हैं एयरक्राफ्ट में 2 टर्बाइंस लगे हैं, इंजन लगे हैं, सो वो हमको सिविल एयरक्राफ्ट में दिखते हैं और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में दिखते हैं, डिफेंस में, और फिर स्पेस। सो इस इंजन का जो फंक्शन है कि ये एनर्जी पैदा करता है विद द फंक्शन जो फ्यूल के साथ, फ्यूल हवा और फायर के साथ एक ऊर्जा पैदा करता है, ऊर्जा से कन्वर्शन होता है। दैट कन्वर्शन हैपेंस व्हाट एवर द सेक्टर्स आई टोल्ड यू। अब ये जो पार्ट है इनके जो मैन्युफैक्चरर्स है OEM है, जैसे हम लैंड बेस की बात करते हैं, जो लैंड बेस की टर्बाइंस हैं, इंजन हैं, 70% ऑफ द मार्केट ग्लोबली 3 कंपनियां कंट्रोल करती है, एक GE, मित्सुबिशी और सीमेंस। ये 3 कंपनियां जो लैंड पे जो 4 वर्टिकल्स बताए थे उसमें न्यूक्लियर, गैस और थर्मल, इन फ्यूल से रिलेटेड जितनी भी टर्बाइंस लैंड पे हैं और वॉट एवर वर्टिकल्स दे वर्किंग दे आर कंट्रोल्ड बाय दीज 3 कंपनीज, सीमेंस, मित्सुबिशी एंड GE. When we come in the aviation, there are only 4-5 companies which are in these sectors. I think you all know them. And then we have the space. So ये सब इंडस्ट्री देखते हैं, बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री है, और जब इसका फंक्शन आप लोगों ने देख चुके हैं तो हर जो बोलते हैं कि एंट्री बैरियर्स कितने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कि हर कोई का पार्ट बनाया हुआ इसको लेके इंजन में फिट होना इज समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल, राइट? कैन यू जस्ट जूम दिस? ये जो एयरफॉइल्स है, ये जो आपको एयरफॉइल्स ये नजर आ रहे हैं और ये मल्टी स्टेज होता है, राइट? जैसे इसमें 15 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे मल्टी स्टेजेस के ये कंप्रेसर होते हैं बेस्ड ऑन द साइज। जैसे 100 मेगावाट का इंजन है तो उसके हिसाब से डिजाइन चेंज, मॉडल चेंज हो जाता है। A320 एयरक्राफ्ट के हिसाब से एक मॉडल आता है, बिगर एयरक्राफ्ट के हिसाब से बिगर मॉडल आता है। सो एवरी OEM के पास कई सारे मॉडल्स है। अभी कई सारे मॉडल्स में फंक्शन सबका एक ही है, प्रिंसिपल सबका एक ही है, चाहे वो लैंड हो, चाहे एविएशन हो, चाहे स्पेस हो, उसका जो काम करने का जो प्रिंसिपल है वो सबका एक ही है। जो बदलता है वो रॉ मटेरियल बदलता है, उसके टॉलरेंस बदलते हैं, उसके एप्लीकेशन बदलते हैं। अब जो हम सोचने की बात है, ये कंप्रेसर एरिया है टरबाइन का, ये कंबशन एरिया। यहां से ये जो एयरफॉइल्स है, एयरफॉइल्स जब हाई आरपीएम पे स्टार्ट होता है सुबह एंड व्हेन द इंजन स्टार्ट्स, यहां से कैलकुलेटेड एयर जो इसका शेप है, इस एयरफॉइल का शेप है, दिस इज रिलेटेड टू माय द लोगो। आपको दिख रहा है 3 क्रॉस सेक्शन है इस लोगो में, इसका ढांचा है। सो इसकी जो क्रॉस सेक्शन है ये 3 डायमेंशन है। इसको आप मेजर नहीं कर सकते विद एनी ऑफ द कैलिपर एक्सेप्ट सम स्पेशलाइज्ड मशीन्स, और एनी फॉल्ट इन दिस कैन लीड टू डिजास्टर। तो इसकी जो क्वालिफिकेशंस है, तो अभी हाउ दिस कंपनी से, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो इस फील्ड में हैं, जैसे इंजन्स में कौन सी कंपनी, 4 से 5 कंपनियां हैं, यू नो, रोल्स रॉयस है, प्रैड एंड विटनी है, GE है, साफरान है, हनीवेल है। लैंड बेस पे मैंने आपको 2-3 नाम बताए। ये बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं जो ये टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट सक्सेसफुल आज, एंड ऑल दिस गोज इन द प्लेटफॉर्म ऑफ बोइंग एंड एयरबस। सिर्फ 2 ही कंपनी है दुनिया,
सो ये जो सर्किट है इसका इट्स वेरी क्लोज एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये जो प्रोडक्ट है कि आज आप एविएशन में, मैं भी एविएशन इंडस्ट्री में हूं, मैं आर्मरेस्ट बना रहा हूं और आप ये बना रहे हो, इतना फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस। सो क्लासिफिकेशन हो गई पार्ट्स की कि आप एविएशन में हो लेकिन बना क्या रहे, आप स्पेस में हो बना क्या रहे, आप कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड में हो लेकिन बना क्या रहे। तो बहुत आसान है बोलना। 15 साल हो गए ऑपरेशंस में, हम टीयर 1 सप्लायर हैं जितने भी इस ग्लोबल फील्ड के ओईएम्स हैं। 15 कंट्रीज में इंटरनेशनल सेल्स होता है। 80% आज की डेट में हमारी रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आती है। अब जो मैंने आपको एक पार्ट समझाया था क्वालिफिकेशन, ऐसे हमने आज की डेट में करीब करीब मॉडल बाय मॉडल, ओईएम बाय ओईएम, कंपनी बाय कंपनी हम लोगों ने करीब करीब 1400 पार्ट क्वालिफिकेशन खत्म किया। ये 15 साल लग गए हमको यहां तक आने में, और ऐसे चीज में ये क्वालिफिकेशन में इतना टाइम क्यों लगता है और क्या लगता है मैं आगे बात करूंगा। सिमिलरली 45 क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, जो कटिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, मशीनिंग हो गया। फोर्जिंग की बात है, यू जस्ट ऑटोमोबाइल आता है, खोज करा निकाला, बट इसके भी प्रोसेसेस, आपके पूरे प्रोसेसेस क्वालिफाई होते हैं कि आपने मशीन ले आपको फोर्जिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। उसके भी काफी स्पेसिफिकेशंस है, उसके तरीके हैं फॉलो करने के, अप्रूवल लेने के। टुडे आज हम 20,000 स्क्वायर मीटर्स में, जब चालू किया था 200 स्क्वायर मीटर में थे, आज हम 20,000 स्क्वायर फीट में, यहाँ से हम 1,75,000 स्क्वायर फीट, 75-80 के आसपास हम स्क्वायर फीट में स्क्वायर मीटर्स में जा रहे हैं। करीब करीब 30 लाख पार्ट्स एयरफॉइल के साथ साथ और भी बहुत कुछ पार्ट्स हमने इंजन के बनाए हैं, जो आज पूरी दुनिया में ऑपरेशनल है। वो कहाँ लग रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, हमको आइडिया नहीं। ये मैंने आपको बता दिया, बहुत स्ट्रिंजेंट है इसके क्वालिफिकेशन स्केड्यूल, जो वेंडर क्वालिफिकेशन होते हैं। 30 से 48 महीने इसमें आराम से लग जाते हैं। हमारे जो टैम है, द टैम व्हाट वी हैव इज, जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस। तो एरोस्पेस डिफेंस में करीब करीब 15,000 करोड़ का जो बिजनेस हम दिखा रहे हैं अवेलेबल। एनर्जी में करीब करीब 2,800 करीब 3-3.5 बिलियन का है, और ऑयल एंड गैस में करीब करीब 9 बिलियन का मार्केट। इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा रेवेन्यू, इतना स्ट्रिंजेंट, हमारा रेवेन्यू इतना कम क्यों है? FY21 में 122 करोड़ के, FY23 में 250 करोड़ के। व्हाट इज द रीजन कि इतना बड़ा मार्केट अवेलेबल है? आप बोल रहे हो कि आपके कंपटीशन सिर्फ कुछ कंट्रीज में ही है, उसके बावजूद भी इतना रेवेन्यू क्यों है? इसमें निकल गया सब, क्योंकि जब तक आप अप्रूवल नहीं लाओगे, आप कितनी मशीन लगा लो, कितने आप इंजन लगा लो, आपको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा। क्यों? आप क्वालिफाई नहीं। तो धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया 15 साल में, जिससे हमने एनर्जी से चालू किया था, जितने भी ओईएम्स है, सारे तीनों ओईएम्स के 80-85% सारे मॉडल्स में हमने क्वालिफिकेशन 1 by 1, 1 by 1 करते 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 यहाँ तक आ गया। यहाँ तक करके जो रेवेन्यू दिख रहा है, ये रेवेन्यू का जो हमारा हिस्सा है, जैसे GX स्पेंड करती है साल में, जो इतना हमारे ये इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट X स्पेंड करती है, तो उस X का हम लेस देन 1% मार्केट शेयर, वॉलेट शेयर होल्डर है। मतलब हम कंपटीशन में सबसे तेज है। हम क्वालिटी, देखिए एक चीज बहुत साफ बता देता हूं, इसमें प्राइस आता है लास्ट में कि आप सबसे पहले केपेबल हो गया इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आप इसमें एबल हो इसको वो शेप देने में, आप क्या कंसिस्टेंसी ला सकते हो अपने बिजनेस में। पहले 3 चीज देखा जाती है, फिर पूछते हैं हाँ भाई क्या भाव है, बिकॉज सेफ्टी इज फर्स्ट, quality is first, and then comes the price, which is just reverse in other businesses, because it's a safety product. तो ये जो सिचुएशन हमारी आज है कि आज जो 1% का वॉलेट शेयर हमारा है, is we have done with the qualifications. अब जो वॉलेट शेयर है, अब it will go in a different direction. That's why जो नई फैक्ट्री बन रही है is to cater the high wallet share from every OEM. अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि जो प्राइसिंग लेवल है, अभी जो अगर कस्टमर एग्जिस्टिंग चाइना से या कहीं से 100 रुपए में खरीद रहा है, आप जाके बोलो मैं 95 में सप्लाई कर दूंगा आपको, वो नहीं आएगा।
वो इसलिए नहीं आएगा कि जब ये चलता है क्वालिफिकेशन पार्ट बाय पार्ट और इतना टाइम वो आपके साथ बिताता है पार्ट बाय पार्ट मॉडल बाय मॉडल, ये सालों का प्रोसेस है और उनका जो रिसोर्सेज है वो आपके साथ रहेगा, जो आपका विटनेस करेगा और काफी खर्चा है उनका। तो 5-7% के लिए वो स्विच नहीं करते, बोले कम से कम हमको एक गैप चाहिए कि बेसिक मेरे को इतना गैप चाहिए कि मेरा खर्चा निकले, मेरा बिजनेस केस अप्रूव हो, तब जाके मैं आ सकता हूँ इरेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल। हमने वो भी हमने बैरियर तोड़ा, हम वो कॉस्ट बेनिफिट भी उनको दिए। अगेन पहले कैपेबिलिटी फिर कॉस्ट, कैपेबिलिटी हमने प्रूव करी, कॉस्ट हमने हमारे कंपटीशन से उनके जो लेवल्स थे वहां पे ले आए और फिर जाके पार्ट्स पूरे क्वालिफाई किए। अब जो है हमारा वॉलेट शेयर लेस देन 1% से वी आर गोइंग टू टेक फॉर द न्यू फैसिलिटी जो हमारा अभी गोइंग एट इन 8x 9x साइज बड़ा बना रहे हैं हम लोग। एंड दिस इज रिलेटेड टू ओनली दिस पार्ट कि जो कस्टमर हमारे हाथ में है और जो क्वालिफिकेशन कर चुके हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ज्यादा लाभ नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, कंसेंट नहीं ले पाया उनसे, परमिशन मेरे पास टाइम नहीं था लेने का, तो जितना है उतने लिख दिए मैंने। बट आप लोग जब फैसिलिटी आओगे आई कैन शो यू मोर एंड मोर एंड मोर। तो मैं काफी नाम यहाँ नहीं लिख सकता हूं, मैं बता भी नहीं सकता आपको, राइट। सो ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस है बिजनेस पे, फाइनेंस पे अभी बाद में बताऊंगा, बिजनेस पे कोई क्वेश्चंस हो। How did you originally get into this? Sir, I have a background. I have come from my father's factory from fasteners. So fasteners was my origin. This is where I did my engineering, and I came across this product from one of my customers, and I got into it. Sir. Do you work for ISRO, DRDO, or HL? No, sir. We don't have capacity. Very less. We do. Since you are into avionics space. Very, very less. We are registered, we are approved by all of them, but business, if you ask, it's quite. Oh, sorry, we can't say this. Consent नहीं लिया हमने. अच्छा, okay. Sorry. Non-disclosure. Sorry, sir. नहीं ये DRHP के मतलब we couldn't take permission नहीं लिया होगा, we can't name them. Fine. Sorry. भाई वो delete कर देना. Anyways. What is your vision?